Good morning. Today we are going to study physics of class 10 and the chapter is light. We have already learned in our previous classes about the image formation by plane mirror, reflection, laws of reflection and the important terms related to spherical mirror like pole, radius of curvature, center of curvature, principal axis and principal focus. So today we are going to learn rules to draw the path followed by the ray after reflection at a concave mirror. Concave mirror में reflection के बाद क्या होता है, किस तरफ रे जाती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो देयर आर फोर रूल्स. पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है. पहले रूल्स देखें, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं और किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, उसका नेचर क्या होता है. ये सारी चीजें हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे. तो पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स जान लेते हैं. देयर आर फोर रूल्स. द फर्स्ट वन इज इफ अ रे ऑफ लाइट falls on concave mirror, अगर रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन इट passes through principal focus of concave mirror after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगी. इसका रे डायग्राम देखते हैं. Suppose this is a concave mirror. This is principal axis. This point is pole. This is focus, and this is center of curvature. So the rules states that if a ray of light falls on concave mirror parallel to principal axis, means the incident ray is parallel to principal axis. This is incident ray which is parallel to principal axis. Then after reflection it passes through principal focus of concave mirror. If a ray of light is parallel to principal axis, then after reflection it passes through focus of concave mirror. One more diagram. This is pole, this is focus, this is center of curvature. Suppose a ray of light falls on mirror and the ray is parallel to principal axis. Then after reflection it passes through focus. If we draw a normal, then angle I is equals to angle R, means law of reflection is followed by both the diagrams. Second one, फर्स्ट रूल आप देख चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इंसिडेंट हो रही होगी, फॉल हो रही होगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. मीन्स इफ a ray of light is parallel to principal axis, then after reflection it passes through focus of concave mirror.
consider the concave mirror. This is principal axis, this is focus, this is center of curvature. If a ray of light is incident to focus, अगर ray of light focus से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, then after reflection it becomes parallel to principal axis. ठीक रूल 1 का कन्वर्स है, उसमें अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल तो वो पास कर रही थी फोकस से. इसमें क्या होगा, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के वो लाइट रे पैरेलल हो गए. रूल 3. सो द नेक्स्ट एंड थर्ड रूल इज if a ray of light passes through center of curvature, अगर कोई लाइट रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से in case of concave mirror then it is reflected back along the same path. डायग्राम से समझते हैं. Consider a concave mirror. This is center of curvature and this is focus. If a light ray passes through center of curvature, if a light ray passes means this is the incident, then after reflection it returns back along the same path. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट होती है. और नॉर्मल के केस में प्लेन मिरर में भी देखा था कि अगर कोई प्लेन मिरर है जस्ट लाइक दिस इज प्लेन मिरर और अगर इस पे हम नॉर्मल लाइट रे इंसिडेंट करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. तो उस केस में लाइट रे वापस सेम पाथ पे जाती थी. यहां भी ऐसा ही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ. सो हम इसको कह सकते हैं if a ray of light passes through center of curvature of a concave mirror then it is reflected back along the same path. ऐसा क्यों होता है? In this case the ray of light, ये रीजन है कि ऐसा क्यों होता है. Why the light ray reflected back along the same path if it falls on center of curvature of a concave mirror. So in this case the ray of light falls normally on the mirror. इस केस में लाइट रे नॉर्मली फॉल हो रही है 90 डिग्री मींस ये नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे. तो इस केस में लाइट रे रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम. नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल, द लास्ट एंड फोर्थ रूल, if a ray of light falls at the pole of concave mirror making some angle with the principal axis, means अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, कोई एंगल बनाती है, मान लेते हैं ये इंसिडेंट है, यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं 50 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, then it get reflected back at the same angle with the principal
कॉनकेव। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है? तो कंसीडर अ कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड मीन्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मिरर से बहुत दूर हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ मीन्स बियॉन्ड सी। तीसरी पॉसिबिलिटी है एट सी। चौथी पॉसिबिलिटी है बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी पॉसिबिलिटी है एट एफ और छठवीं पॉसिबिलिटी है बिटवीन एफ एंड टी। मीन्स टोटल इसमें 6 केसेस होंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में 6 केस होंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये चेक करेंगे कि उसकी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है। मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, वो वर्चुअल बन रहा है या रियल हो रहा है। तो अगर लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज फॉर्म होगा और अगर लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करेंगी तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज क्या है? सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। एनलार्ज और मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1। केस 1 है when the object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है इंफिनिटी पे, मीन जस्ट लाइक सन, बहुत दूर है मिरर से। अब इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होगा, मींस हाईली लार्ज होगा और इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो 2 रेज एक्चुअली मीट कर रही हो या ऐसा अपीयर हो रहा हो कि रेज मीट हो रही है। तो किस तरीके से देखते हैं? सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट E which is placed at infinity। ये एक ऑब्जेक्ट ए बी है, बड़े साइज का है जो कि इंफिनिटी पे प्लेस है। अब रूल्स को याद करिए। रूल क्या था? if a light ray is parallel to principal axis then it passes through focus। ये इंसिडेंट हुई लाइट which is parallel to principal axis, then after reflection it passes through principal axis। फोकस से पास कर रहा है। सेम अगर ये लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा है which is also parallel to principal axis then it passes through focus। So एक और डायग्राम कुछ बुक्स में दिया होता है इस तरीके का। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। जरूरी नहीं है कि लाइट रेज पैरेलल ही इस तरीके से आए। लाइट रेज ऐसा भी हो सकता है एक ही बेटर है। तो केस 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 4 चीजें हमें जाननी होती हैं। द फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट
इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां फॉर्म हो रही है? एट फोकस एफ, फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट में आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है, रियल में मिल रही है, ऐसा अपीयर नहीं हो रहा कि ये मिल रही है। तो इस केस में व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट द पॉइंट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। और हमेशा रियल के साथ जो इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड है। एंड द लास्ट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इज, इमेज का जो साइज होगा वो होगा, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी फोकस पे तो छोटे को हम लिखते हैं डिमिनिश, और बहुत छोटी है तो इसको लिखेंगे हाईली डिमिनिश। साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पॉइंट साइज। एकदम पॉइंट साइज में इमेज फॉर्म होगी, बहुत ही छोटी फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड द लास्ट हाईली डिमिनिश्ड होगी, फोकस पे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब केस सेकंड पे, सेकेंड केस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 5 और केसेस बचे हुए हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।